Hello everybody, I welcome you all for today's session. In last session, we started the kingdom Protista. Highlights of last session: kingdom Protista are the unicellular eukaryotes. Kingdom Protista are the organisms which are present everywhere. Mostly, some are aquatic, some are present in the moist environment, and some are terrestrial. About nutrition, some protistans are autotrophic and some protistans are heterotrophic. Autotrophic nature, they showing the photosynthesis. Heterotrophic nature, they are parasite or saprophytic in nature. About reproduction, some protistans reproduce sexually, some protistans reproduce asexually. If asexually, then there is binary or multiple fission or spore formation. In sexual type, there is formation of the gamete and fusion of the gamete to form the zygote, and zygote directly form the new individual. There is no embryonic stage. Okay, so these are some specific characteristics of the protistans. Also, eukaryotic characteristics are there. The cell is eukaryotic, hence there is presence of the nucleus, that is prominent large nucleus is present. Some protistans having the more than one nucleus and some protistans having only single nucleus. Okay, also having the membrane bound organelles, also for the purpose of locomotion, they are having the various conditions. That is, some having the cilia, some having the flagella, and some consist the pseudopodia, by which they can locomote or move from one place to another place. Okay, in last session we studied the classes or types of the protistans. Some protistans are the plant-like, some are animal-like, and some are fungi-like. Plant-like protistans, diatoms and dinoflagellates. Then animal-like protists, protozoans. Fungi-like protists, that is slime molds. Euglenids also there, also present, which are like bacteria. Okay, so these are the classes. From that we completed the chrysophytes, that is, and diatoms. Okay, which are photosynthetic organisms. In that some golden algae also present, that is called as the desmids. Diatoms and desmids, both are the groups of the chrysophytes. Okay, and for the purpose of photosynthesis, they are having the specialized pigment, that is the chlorophyll A, as like the plants. So chrysophytes, the unique feature is that some chrysophytes responsible for red sea. Some chrysophytes are responsible for the red sea because they are having the specific pigment and their rapid multiplication in that areas. So we studied about erythrum species from that. So this is highlights of the chrysophytes. Next we are studying now, that is an dinoflagellate, the next type of the kingdom Protista. डायनोफ्लैजेलेट, अब हम डायनोफ्लैजेलेट की तरफ अगर आएंगे तो डायनोफ्लैजेलेट के नाम के अंदर ही बहुत कुछ छुपा हुआ है. क्या है? डायनो में डी आई है. ओके, इसका मतलब हुआ टू. फ्लैजेलेट मतलब टू फ्लैजेला. तो ऐसे प्रोटिस्टन्स जिनके अंदर दो फ्लैजेला होता है उन्हें हम कहते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट. ओके, these protistans having the two flagella. We will see all characteristic feature of the dinoflagellate. First character is that their occurrence. हमें dinoflagellate कहाँ मिलेंगे? Mostly they are marine. dinoflagellate mostly marine है. Okay, some species, कुछ species होते हैं इसके, some species present in the fresh water. थोड़े हैं in फ्रेश वाटर. ओके, अब हम जाएंगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चरली पहले अगर हम इसका कलरेशन देखेंगे तो डिफरेंट कलर्स हमको देखने को मिलेंगे. अगर हमने क्रिसोफाइट्स देखा है तो क्रिसोफाइट्स के अंदर दो ही कलर हमको दिख रहे थे, दैट इज डायटम्स जो ब्लू ग्रीन है और दूसरा जो है दैट इज एंड डेस्मिड्स जो गोल्डन है. ठीक है, लेकिन अभी यहां पर जो है तो तुमको बहुत अलग अलग कलर्स देखने को मिलेंगे. डिफरेंट कलरेशंस आर देयर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स. अलग अलग पिगमेंट होने की वजह से यहां पर क्या होगा, अलग अलग कलर्स मिलेंगे. तो सम डायनोफ्लैजेलेट आर येलो, सम आर रेड, सम आर ब्राउन. ओके, अब यहां पर डिफरेंट है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं. तो इसमें ब्लू भी है, आपको ब्लू मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू,
green, etc. Okay, it is depend on the pigments, depending on pigments जो उसके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, that are present in their cells. Okay, so this is about their color. Okay, now about its cell. अगर हम इसके सेल में जाएंगे तो सेल में पहले लेना पड़ेगा हमको सेल वॉल. तो सेल वॉल हैविंग द सेल प्लेट्स. सेल वॉल क्या कंसिस्ट करता है? सेल वॉल सेल प्लेट कंसिस्ट करता है. हम एक एग्जांपल लेंगे गोनियोलक्स. ये एक एग्जांपल है. तो गोनियोलक्स को देखो आप, ये यहां पर आपको प्लेट्स दिखेंगे. अब एक फरो भी आपको बीच में दिखेगा, सी लाइक दिस, एंड ये है प्लेट्स. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज सेल्यूलोजिक प्लेट्स. तो सेल वॉल कैसे बना? अभी यहां पर मैंने सेल प्लेट लिखा है, एक्चुअली वैसा नहीं है. तो इट इज बाय सेल्यूलोज प्लेट. ठीक है, अब तो मैंने इसको क्या किया, सिर्फ इसका सेल वॉल लिया हूं. नाउ फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन दे हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे हैविंग द नेम, दैट इज डायनोफ्लैजेलेट, मींस फ्लैजेला. तो अब यहां पर फ्लैजेला कितने हैं? 2. दे हैविंग द 2 फ्लैजेला. बट ये फ्लैजेला कैसे है? हेटेरोकोन्ट टाइप. दे आर टाइप ऑफ हेटेरोकोन्ट. इसको याद रखो अच्छे से. They are the heterocone type. Okay, अब कैसे हेटेरोकोन किसे कहेंगे? हेटेरोकोन उसे कहते हैं कि जिसके अंदर अलग अलग नेचर होते हैं, दैट इज डिफरेंट नेचर्स आर देयर. तो इसके जो दोनों भी फ्लैजेला है, ये दोनों फ्लैजेला डिफरेंट नेचर शो करते हैं, हैविंग दी डिफरेंट नेचर. अब ये डिफरेंट नेचर होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोकोन टाइप. कैसे? अब एक फ्लैजेला आपको यहां मिलेगा, एक फ्लैजेला आपको मिलेगा यहां पर फोरो में. ओके, ये जो फ्लैजेला है जो फोरो में आपको दिख रहा है, तो ये फ्लैजेला होगा ट्रांसवर्स फ्लैजेला. इट इज एन ट्रांसवर्स फ्लैजेला. अब एक फ्लैजेला आपको ऐसे दिखेगा जो प्लेट के अंदर होता है, longitudinally. So this is called as the longitudinal flagella. Longitudinal flagella. Okay, तो दो अलग अलग नेचर मिल रहे हैं, एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्जिट्यूडनल है, तो दोनों अलग अलग हैं. तो ऐसा फ्लैजेला होने की वजह से hence it is called as heterocone type of flagella. ठीक है, तो अब ये हो गया अबाउट द फ्लैजेला. अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे. दिस टाइप ऑफ फ्लैजेला, अब इसके अरेंजमेंट इस तरीके से है. ऐसी अरेंजमेंट होने की वजह से इट शोविंग स्पिनिंग मोमेंट. इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से द ऑर्गेनिज्म शोज स्पिनिंग मोमेंट. ये क्या करता है? स्पिनिंग मोमेंट शो करता है. समझ में आपके? अभी ये स्पिनिंग मोमेंट की वजह से, because of spinning moment, the flagella or sorry the dinoflagellate are also called as whirling whips. इन्हें और क्या नाम कहा जाता? और नाम दिया जाता whirling whips. whirling that is spinning. ये क्या है? spinning. तो whirling whips ये नाम dinoflagellate को दिया जाता. नीट के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, which of the following are whirling whips. जो ऑप्शन दिए उसमें से whirling whips कौन से? तो whirling whips कौन है? that is an dinoflagellate. तो ये एक नेचर मैंने आपको यहां पर बताया. अब हम आगे जाएंगे. इसके स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस को ले लो. न्यूक्लियस हैविंग कंडेंस्ड क्रोमोसोम. न्यूक्लियस हैविंग कंडेंस्ड क्रोमोसोम. याद रखो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कंडेंसेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन. बराबर है? ये ऐसे प्रोटीन होते हैं और इस प्रोटीन को डीएनए ऐसे रैप होते हैं. इट इज रैप अराउंड इट.
ओके, तो ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन आर कॉल्ड एज द हिस्टोन प्रोटीन। इन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और ये है आपका डीएनए। तो डीएनए क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन को रैप हो गया। हिस्टोन डीएनए रैप अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, हेंस द स्ट्रक्चर इज कंडेंस्ड। इसलिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होगा? कंडेंस्ड। मतलब क्रोमोसोम तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन इसमें डीएनए क्या हो गया? इस तरीके से है रैप्ड। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। अब ये यूकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। बट here the condensation is not because of histones, because histones are absent in the chromosome of dinoflagellates. Histones are absent. ये डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर हिस्टोन्स क्या है? एब्सेंट है। इवन अगर आप देखोगे इसको इंटरफेस के अंदर, इवन इन इंटरफेस दे आर कंडेंस्ड। अगर हम देखेंगे तो इंटरफेस के अंदर क्रोमोसोम, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम लीनियर हो जाते हैं, कंडेंसेशन शो नहीं करते तो लीनियर हो जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। लेकिन यहां पर डायनोफ्लैजेलेट के अंदर ये कैसे हैं? दे आर कंडेंस्ड इवन इन इंटरफेस। अगर सेल इंटरफेस में भी अगर होगा तो भी ये कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो इसकी वजह से इस तरीके का नेचर इसको है। इसीलिए ऐसे न्यूक्लियस को, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मेसोकैरियन। इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या कहा जाता? दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मेसोकैरियन। ओके, अब ये हो गया अबाउट द न्यूक्लियस। कुछ यूनिक फीचर, ये तो सारे स्ट्रक्चर्स हो गए इसके। अब रिप्रोडक्शन के अंदर हम जाएंगे। रिप्रोडक्शन, डायनोफ्लैजेलेट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। सेक्सुअली बाय गैमेट्स एंड असेक्सुअली बाय माइटोसिस। माइटोसिस यानी यहां पर क्या होगा? बाइनरी फिशन होगा। तो ये होगा इसका रिप्रोडक्शन। नाउ दी न्यूट्रिशन। डायनोफ्लैजेलेट का और एक कैरेक्टर्स क्या होगा? हम यहां पर न्यूट्रिशन लेंगे तो डायनोफ्लैजेलेट हैविंग द पिगमेंट एज लाइक प्लांट। जैसे प्लांट के अंदर पिगमेंट होता है वैसे ही डायनोफ्लैजेलेट के अंदर पिगमेंट होता है। तो डायनोफ्लैजेलेट के अंदर वैसा पिगमेंट होगा तो डायनोफ्लैजेलेट आर ऑटोट्रॉपिक एंड देयर ऑटोट्रॉपिज्म बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ photosynthesis, hence photosynthetic autotropic mode of nutrition is there. Okay, now अब यहां पर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए इसके। डायनोफ्लैजेलेट हैविंग सम यूनिक फीचर्स। डायनोफ्लैजेलेट के अंदर कुछ यूनिक फीचर्स है जो बाकी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। सम यूनिक फीचर्स, अब वो क्या है? पहला यूनिक फीचर ले लो इसका। पहला यूनिक फीचर क्या है? तो डायनोफ्लैजेलेट्स ये बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस और ल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है? ऑर्गेनिज्म अगर लाइट को इमिट कर सकते हैं, इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिटिंग द लाइट, कहीं लिख लो बायोल्यूमिनेसेंस मींस व्हाट? If living organism emits the light, then it is called as a bioluminescence activity. तो उसको हम बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी कहते हैं। तो अब ये ऑर्गेनिजम्स लाइट्स को इमिट करते हैं, इसीलिए ये हो गए बायोल्यूमिनेसेंस। इसके अंदर कौन से हो सकते हैं? तो एग्जांपल है नॉक्टिलुका। एग्जांपल नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका के ऊपर क्वेश्चन किया गया है नीट के अंदर इसके पहले। ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी। जो ऑर्गेनिज्म दिए गए उसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस एक्टिविटी कौन ऑर्गेनिज्म शो करता है? तो इट इज एन नॉक्टिलुका। अब और दूसरा एक फीचर इसके अंदर है, कुछ ऐसे डायनोफ्लैजेलेट है जैसे गोनियोलक्स, जो सम डायनोफ्लैजेलेट्स शोज
रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन सी, रैपिड मल्टीप्लीकेशन at upper part of sea और द सी वाटर, सी वाटर के अंदर उसके अपर पार्ट पर रैपिड मल्टीप्लीकेशन ये लोग शो करते हैं. इफ देयर इज एन रैपिड मल्टीप्लीकेशन देन दे फॉर्म ए कंप्लीट लेयर कॉल्ड एज द रेड टाइड, नॉट द रेड सी. अब यहां क्या होगा, इट इज कॉल्ड एज, हम इसे क्या कहेंगे, रेड टाइड्स. ये मेडिटेरियन सी के अंदर आपको मिलेगा. shows rapid multiplication of upper part of sea water. Example Goniolus. अब ये जो Goniolus हैं ये रेड हैं, ओके, इसलिए ये जो अपर पार्ट पर रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करते हैं तो इसे हम कहेंगे रेड टाइड, ओके. और ये रेड टाइड कहां है, मेडिटेरियन सी के अंदर, मेडिटेरियन सी, ठीक है. स्पेसिफिक जोन है ओशियन में. अच्छा, ये जो लेयर है रेड टाइड, दिस रेड टाइड लेयर इज टॉक्सिक. ये यूनिक फीचर के अंदर आप ले सकते हो, मैं अभी यहां पर सेपरेट नहीं लिखता. तो ये जो है ये दिस दे शोज द टॉक्सिक नेचर. ये क्या करते हैं, टॉक्सिक नेचर शो करते. क्या होगा इससे, द फिशेस विल बी किल. इससे फिशेस क्या हो गए, इससे फिशेस किल हो जाएंगे, ओके. सो हेंस दे हैविंग द टॉक्सिक नेचर. दिस इज ऑल अबाउट द डायनोफ्लैजेलेट. अब हम नेक्स्ट टाइप इसके अंदर देखेंगे, दैट इज थर्ड टाइप, वी कॉल्ड आफ्टर डायनोफ्लैजेलेट, दैट इज यूग्लिनॉइड्स. तो डायनोफ्लैजेलेट के बाद में हम अगला प्रोटिस्टा देखेंगे, दैट इज एन यूग्लिनॉइड्स. अब ये जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, तो ये यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट देन द अदर. अब हमने डायटम्स दैट इज क्रिसोफाइट्स और डायनोफ्लैजेलेट देखे, दे आर कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक, वो कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक है. बट नाउ द यूग्लिनॉइड्स दे आर नॉट कंप्लीटली फोटोसिंथेसिस. इफ लाइट देन फोटोसिंथेटिक. If there is absence of light, then they will convert into the heterotropic nature. ठीक है, should remember it. इसको याद रखो अच्छे से. अब यूग्लिनॉइड्स, हम अब यूग्लिनॉइड के अंदर आएंगे तो यूग्लिनॉइड का ऑकरेंस देखेंगे, कहां मिलते हैं. सो मोस्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड्स, मोस्ट, अब तक के हमने जितने ऑर्गेनिज्म देखे हैं तो दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन द मराइन वाटर, बट most euglenoid are present in the fresh water, okay. some थोड़े हैं, some are in marine water. This is an occurrence. Now its structure, structurally euglenoids are different than the dinoflagellate and diatoms. How they are different from the diatoms and dinoflagellate? So their cell wall, this first difference, पहला डिफरेंस इनके स्ट्रक्चर के अंदर है. तो सेल वॉल इसका जो है ये एक्चुअली सेल वॉल नहीं है, तो प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन है कॉल्ड एज द पेलिकल. प्रोटीन रिच मेम्ब्रेन called that is pellicle. So in place of cell wall, which organism having the pellicle? That type of question is there. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इसके अंदर क्या होगा, यूग्लिनॉइड्स ये पेलिकल कंसिस्ट करते हैं. पेलिकल, व्हाट इज पेलिकल, इसके ऊपर सवाल इसके पहले पूछा गया था कि पेलिकल क्या है. पेलिकल इज ए प्रोटीन रिच लेयर, ओके. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, याद रखो, instead of cell wall there is an protein rich membrane, and that protein rich membrane is called as, that is an pellicle, okay. अब यहां से आगे जाएंगे हम फ्लैजेला. डायनोफ्लैजेलेट में दो फ्लैजेला थे, यूग्लिनॉइड्स में भी दो फ्लैजेला है, लेकिन हेटेरोकॉन टाइप नहीं है. यहां पर जो दो फ्लैजेला है इसमें एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है. फ्लैजेला 2, in that one is short, छोटा, and another one is long, दूसरा जो है वो लॉन्ग है, ठीक है. अब ये फ्लैजेला जहां से बनता है
वैसे इसकी बॉडी पेलिकल की वजह से क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। बिकॉज ऑफ पेलिकल द बॉडी इज फ्लेक्सिबल। अभी आप यहां पर उसका स्ट्रक्चर देखोगे यूग्लिनॉइड का। सो यूग्लिनॉइड आर लुक लाइक दिस, इस तरीके से यूग्लिनॉइड दिखते हैं। इसके अंदर एक फ्लैजेला लॉन्ग है। ओके, अब जहां से लॉन्ग फ्लैजेला बना है, एट दैट रीजन, दैट एंटीरियर पोजीशन, इट्स एंटीरियर पोजीशन समवॉट इनवैजिनेट, इसके एंटीरियर पोजीशन क्या हो गई, इनवैजिनेट हो गई। दिस इज एन इनवैजिनेशन, दिस इनवैजिनेशन इज कॉल्ड एज, दिस एन इनवैजिनेशन। ओके, दिस इनवैजिनेशन इज कॉल्ड एज, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता, दैट इज एन साइक्लोस्टोम, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोस्टोम। अच्छा, ये साइक्लोस्टोम जो यहां पर इनवैजिनेट हुआ है, दिस इज ए माउथ पार्ट, इसे क्या कहा जाता, दिस इज द माउथ पार्ट, दैट इज सेल माउथ। ये क्या हो गया, इस सेल का माउथ होगा। एज लाइक दैट स्ट्रक्चर। नाउ हियर एट दिस रीजन, इसी रीजन पर एक मेम्ब्रेन भी है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रिजर्वॉयर। तो यहां एक मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रिजर्वॉयर। ओके, नाउ दिस मेम्ब्रेन हैविंग टू आई स्पॉट, इस मेम्ब्रेन पर एक आई स्पॉट होता है, दो कर दो उसको, having eye spot, eye spot actually it is sensitive part. How it is sensitive? Because of the photosynthetic stigma. तो मैं इसे कहूंगा यहां पर photosynthetic stigma, photosynthetic stigma. This photosynthetic stigma is called as eye spot. This is about its structure. ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसका बाद में फिर इसका ओन न्यूक्लियस भी है एंड अदर सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मैं सभी यहाँ फिगर के अंदर नहीं निकालूंगा। जो यहाँ पर स्पेसिफिक था तो मैंने यहाँ पर आपको दे दिया, जो स्पेसिफिक था वो। दिस इज ए फ्लैजेला, यहाँ आपको सिर्फ लॉन्ग फ्लैजेला दिख रहा है, बैक साइड में शॉर्ट फ्लैजेला होगा, तो ऐसे दो फ्लैजेला होते हैं। दिस इज अबाउट इट स्ट्रक्चर। तो ये इसके स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ देयर न्यूट्रिशन, देयर न्यूट्रिशन, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन कैसे, दोनों भी, बोथ नेचर इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, both nature in a single organism. If light is present, अगर लाइट है तो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, एंड इफ लाइट इज एब्सेंट, अगर लाइट एब्सेंट है तो हो सकता है इनकी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर बनाते हैं। मतलब यहां पर ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो लाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉप, और लाइट है तो ऑटोट्रॉप। अब लाइट है, ऑटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, इसका मतलब दे हैविंग स्पेशलाइज्ड पिगमेंट। एक्चुअली पिगमेंट वही होते हैं जो पिगमेंट इनके, मतलब जो पिगमेंट हायर प्लांट्स के अंदर होते हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ये दो जो हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट होते हैं, तो दोनों भी पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम जाएंगे इसके अगले कैरेक्टर्स की तरफ, दैट इज रिप्रोडक्शन। हाउ डायनोफ्लैजेलेट रिप्रोड्यूस, डायनोफ्लैजेलेट रिप्रोडक्शन मोस्टली असेक्सुअल। मैंने यहां पर डायनोफ्लैजेलेट कहा, सॉरी, यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय लॉन्जिट्यूडनल फिशन, याद रखो, बाय लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स फिशन और लॉन्जिट्यूडनल फिशन। ट्रांसवर्स फिशन सीधे दो पार्ट होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल फिशन बीच में से होता है, ठीक है। तो
असेक्सुअल, सम शोज सेक्सुअल मोड, और सेक्सुअल मोड आपको मालूम है, बाय मेयोसिस फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज देयर एंड गैमेट विल बी फर्टिलाइज। ठीक है, अब इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ अलगी के अंदर कैरेक्टर मिलता है, दैट इज शोज द पाल्मेला स्टेज, दैट शोज द पाल्मेला स्टेज। व्हाट इज द पाल्मेला स्टेज, क्या है समझ लो, मैं सिर्फ आपको बोल देता हूं, वहां पर लिखता नहीं हूं। पाल्मेला स्टेज, हाँ इतना लिख दूंगा यहां पर, पाल्मेला स्टेज इज इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। अगर इस ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन होगी, एट दैट पीरियड द ग्रुप, दे विल कम्स टुगेदर, फॉर्म ए ग्रुप एंड सीक्रेट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस बाय विच दे फॉर्म ए शीथ। वो क्या करेंगे, उन पर एक शीथ बनाएंगे। सी है, अब इनका ग्रुप बन गया, ओके। ये डिफरेंट एक तरफ आ गए और फॉर्म ए लेयर, उसके ऊपर क्या करेंगे, लेयर, दैट कॉल्ड एज ए सिस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, सिस्ट। तो ये स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस का से एक लेयर बनाएंगे, वो ग्रुप के ऊपर होगा, वो उसको एनक्लोज कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पाल्मेला स्टेज। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द पाल्मेला स्टेज। तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाल्मेला स्टेज शो करते हैं। ठीक है, सो यूग्लिनॉइड के अंदर ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जो हमने आज यहां पर देखे हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर, आज का सेशन यहां पर समाप्त करता हूं। अब इसके बाद दो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बचे हैं, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। हम दोनों को भी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।